Good morning, everyone. Is it audible now? Yeah. So, good morning, everyone from I6 Studio. So, we are again here with our session from L&D on mindfulness. So, again, we are here. Happy New Year to everyone. Happy Christmas to everyone. Shall we start now? Through this session of mindfulness, we embark on the journey towards cultivating a practice that has the power to transform our lives. Mindfulness. In the world that often moves as a relentlessness space, mindfulness offers us a sanctuary, a space to pause, and a chance to reconnect with the present moment. As we delve into this session, it will open our hearts and mind to the profound possibilities that mindfulness holds to each of one of us. सो नाउ व्हाट इज माइंडफुलनेस एक्चुअली माइंडफुलनेस इसके मूल में वर्तमान क्षण में पूरी तरह से मौजूद संलग्न और जागरूक होने की कला है। यह बिना किसी निर्णय के हमारे विचारों और भावनाओं को अवलोकन करने, हमारे अनुभव की समृद्धि को अपनाने और स्वीकृति करने की गहरी भावना विकसित करने के बारे में है। आज के सत्र का उद्देश्य माइंडफुलनेस के सार का पता लगाना और खुद को व्यवहारिक उपकरणों से लैस कराना है, जिसमें हमारे दैनिक जीवन में सहजता से एकाकृत किया जा सकता है। हमारा लक्ष्य पृष्ठभूमि या अनुभव की परवाह किए बिना माइंडफुलनेस को प्रकट करना, चाहे आप तनाव से राहत चाहते हो, बेहतर फोकस या बस आंतरिक शांति की और बड़ी भावना की तलाश कर रहे हो। माइंडफुलनेस को जानने के लिए आज हमारे साथ एमिनेंट स्पीकर है, जो कोच एंड ट्रेनर both of them. She is Miss Pooja Mamtani Ahuja, who is a licensed rehabilitation psychologist with 18 years of experience spanning roles as an HR and administrator, trainer, counselor, and psychologist. Her expertise lies in licensed rehabilitation psychology, psychological counseling, psychotherapies, career counseling, and training. She conducted counseling sessions for individual, couple of families, and groups. Provide career counseling, administration, psychotherapies, and offer rehabilitation psychology services. She is certified in NLP, CBT, REBT, and qualification in clinical hypnosis, rehabilitation psychology, and a master in psychology. Acha, NLP, CBT, and REBT, I'm reading it out, but I'll just explain in a little while what is it, so that we are conversant with the terminology also. And experienced as a guest faculty at Narayan Shri Homeopathic Medical College, consultant psychology at Elder First, and practice owner at Vimukti Emotional Wellbeing and Psychological Services. She has conducted more than 50 workshops and training sessions. Her mission is to be a positive leader, inspiring personal growth and assisting individuals in reaching their life goals through continuous engagement in life coaching sessions. So, जैसा कि मैंने कहा कि what is CBT and REBT and also NLP. So, NLP basically is a neuro linguistic programming, is a pseudo scientific approach to communication, personality development, and psychotherapy. Psychotherapy aims to improve an individual well-being and mental health to resolve or mitigate troublesome behavior, relieves compulsion, thoughts, and emotion, and to improve relationship and social skills. Then CBT is a typical uh, therapy treatment that helps people learn how to identify and change the destructive and disturbing thought pattern जो हमारे दिमाग में आते हैं, जो destructive और disturbing thoughts आते हैं, which have a negative influence on their behavior and emotions. तो इसको कैसे कंट्रोल किया जाए, ये भी मैडम हमें बताएंगी. Then REBT is a rational emotive behavior theory. A mindset coach helps clients discover, practice, and master new ways to more intentional in shaping their mindset and focus. In mindset coaching,
Clients take stock of their beliefs, behaviors, and thought pattern to identify what is helping and what is hurting. So here we are with Madam Pooja Mamtani Ahuja, and with this I hand over the online platform to Madam. Madam, welcome, and this is your platform now. Good morning, all. Welcome to our today's workshop on mindfulness. And I would like to thank Archana ji for such a wonderful introduction. And जितनी खूबसूरती से उन्होंने मेंटल हेल्थ के बारे में बताया, थेरेपीज को एक्सप्लेन किया, डेफिनेटली आई विल बी एडिंग मोर टू इट. बट आई वुड लाइक टू थैंक्स हर कि उन्होंने ये सारी थेरेपीज को इंक्लूड किया. सो इट बिकम्स लाइक यू पीपल विल बिकम मोर अवेयर कि हाउ काउंसलिंग में और साइकोथेरेपीज में इस तरह की थेरेपीज कैसे हम लोगों का काम करती है. तो इसमें से एक बहुत सारी थेरेपीज जो मैम ने बोली, एनएलपी हो गई, सीबीटी हो गई, आरईबीटी हो गई या हिप्नोथेरेपी हो गई, एंड देन देयर इज माइंडफुलनेस. सो टुडे वी विल बी टॉकिंग अबाउट मोर ऑन माइंडफुलनेस. बट ये सारी थेरेपीज को हम इंक्लूड भी कर सकते हैं ऑन mindfulness therapies. So I would like to share the screen also, and then we will continue. Hope the screen is visible to all. So the flow of today's workshop will be like, we'll be introduction to the mindfulness, a quick review on the benefits, and there is a lot of confusion between what is mindfulness and what is meditation. Then we'll do some breathing exercise, what is art of observation, how we can inculcate mindfulness in our daily life. Then again we'll do a short meditation if times allows us, and then how we can reduce our stress with through mindfulness. And then definitely in between also you can ask some questions if you have. So we'll try to have some interactive kind of discussion. Agar aap logon ke kuch questions honge, तो definitely we'll try to address that. So you can see this picture. क्या आप रिलेट कर पा रहे हैं इस पिक्चर को, और क्या होता है माइंडफुल और माइंडफुलनेस में डिफरेंस? हम अभी भी यहाँ पे बैठे हैं, आप सब लोग यहाँ पे बैठे हैं, और आप देख सकते हैं कि आपके माइंड में अभी क्या-क्या चल रहा है. फर्स्ट थॉट या सेकंड पिक्चर मीन्स कि अभी आप यहाँ बैठे हो, तभी आपको आप क्या-क्या अभी सुबह घर से करके आए हो, कल क्या-क्या हुआ था, अभी दिन भर क्या होना है, और आप घर जाके और क्या-क्या करोगे, ये सब आपके दिमाग में चल रहा होगा. लेस पीपल विल बी माइंडफुल एट इन द प्रेजेंट मोमेंट. एवरीबॉडी सबको अपने पिछला या आगे भागने में सब लगे हुए हैं, या कल क्या हुआ, इसने मुझसे क्या कहा, मुझे ये काम करने थे, मुझे ये काम करने हैं. एंड वी और इतने सारे कियोस में वी हैव फॉरगॉट टू लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट. सो लिविंग इन दिस प्रेजेंट मोमेंट, दिस इज माइंडफुलनेस. हमें अपने दिमाग को खाली करने की जरूरत नहीं है, हमको सिर्फ अपने दिमाग को ऑर्गेनाइज करने की जरूरत है. मैं आप लोगों को के साथ एक छोटी सी स्टोरी शेयर करना चाहूंगी. अ, अ, एक बार एक पोएट होता है. वो पोएट ट्रेन में जा रहा होता है, और उसका उस टाइम मूवमेंट ये होता है कि मैं इस ट्रेन में बैठूंगा, शांति से बैठूंगा, और बाहर की वादियों को देखते हुए, ब्यूटीफुल, क्योंकि ट्रेन के बाहर जो भी सीनरी होती है वो बहुत ब्यूटीफुल होती है, और मैं कुछ अपनी पोएट्री लिखूंगा. सो वो वहाँ बैठता है, आराम से बाहर देखता है, कुछ एकाध जब तक एक स्टेशन निकलता है वो अपनी पोएट्री वगैरह आधी लिखता है, कुछ आधी या शुरू की कुछ लिख चुका होता है, और ही वाज जस्ट engrossed in his process, calmly writing the story. इतने में एक स्टेशन पे ट्रेन रुकती है, और वहां पर उसके सामने वाली सीट में एक आदमी आके बैठता है, और उसके साथ दो बच्चे होते हैं. एक बच्चा 5 साल का होता है और एक बच्चा 7 साल का होता है. अब वो आदमी आके बैठ जाता है. पोएट वाज लाइक कि मुझे तो अपनी पोएट्री लिखनी है. लेकिन उस पूरे जैसे ही बच्चे एंटर होते हैं, वो बहुत शोर मचाते हैं, पूरी बोगी में भागा-दौड़ी, शोर मचाना, और वो उसके फादर जो है वो चुपचाप बस बाहर बैठ के देखते रहते हैं. आफ्टर अ व्हाइल थोड़ी देर तो पोएट डिस्टर्ब तो हो ही जाता है, ऑब्वियसली वो एक काम मोमेंट चाह रहा था अपनी पोएट्री लिखने के लिए. बट व्हाट हैपेंड, 10 मिनट बाद वो थोड़ा वेट तो करता है, लेकिन बच्चे उतना ही शोर मचा रहे हैं. वो डिस्टर्ब होता है, वो थोड़ा वेट करता है कि शायद आप चुप हो जाएँगे, नहीं होता. 20 मिनट्स निकल जाते हैं.
वो इरिटेट होने लगता है कि अरे! ये क्या है? ये कैसा फ़ादर है? इसके बच्चे पूरे बोगी में शोर मचा रहे हैं, हल्ला मचा रहे हैं और ये अपने बच्चों को चुप ही नहीं करा रहा है। स्टिल वो थोड़ा पेशेंस रखता है, आधा घंटा हो जाता है। अब तो ही वाज़ वेरी एंग्री कि यार ये कैसा फ़ादर है जो अपने बच्चों को ध्यान नहीं रख सकता, इतना शोर मचा रहे हैं, पूरी बोगी डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो वो बस आधे घंटे बाद तो उसके बाद व्हाट ही डू, बस वो खड़ा होता है और बहुत ज़ोर से उस आदमी को चिल्लाने लगता है। पूरा एंगर लाइक अ, कि कैसे बाप हो तुम? अपने बच्चों को नहीं सँभाल सकते, अगर नहीं सँभाल सकते तो लेके नहीं आना चाहिए था। ये पूरी बोगी आपकी वज़ह से डिस्टर्ब हो रही है, आपके बच्चों की वज़ह से डिस्टर्ब हो रही है। क्या इस पॉइंट पे आप अपने इमोशंस को आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं? क्या आप भी जब मैं बता रही थी कि बच्चे शोर मचा रहे थे, पोएट अपना काम नहीं कर पा रहा था, तो दैट इरिटेशन, दैट फ्रस्ट्रेशन, देन एंगर क्या ये आपने भी फ़ील किया? फिर बहुत धीरे से वो आदमी उस पोएट को देखता है और कहता है कि अभी-अभी मैं अपनी वाइफ़ का फ्यूनल करके आ रहा हूँ और इन बच्चों ने अभी अब अपनी मदर लूज़ की है, सो वो भी अडैप्ट कर रहे हैं, वो अभी बहुत छोटे हैं, मैं अभी उन्हें रोकना-टोकना नहीं चाहता हूँ, बस वो अडैप्ट कर रहे हैं। एंड ऑल ऑफ अ सडन द स्टेट ऑफ माइंड चेंजेस। तो जो सिर्फ़ 5 मिनट पहले बहुत गुस्सा हो रहा था, एंग्री हो रहा था, उसका स्टेट ऑफ माइंड चेंज हो गया। सो व्हाट द स्टोरी टेल्स, हम अपनी चीजों के बारे में इतना इनग्रॉस्ड रहते हैं, अपने थॉट प्रोसेस, मेरे काम, मेरी चीजें, दैट वी फॉरगेट टू ऑब्जर्व थिंग्स अराउंड अस, व्हाट इज हैपनिंग। अगर वो थोड़ी देर पहले अगर सामने वाले के इमोशंस को सिर्फ ऑब्जर्व करके ही देखता, तो वो खुद भी इतना डिस्टर्ब नहीं होता। देन ही अलाउड कि चलो मेरी पोएट्री से ज्यादा तो उसका बड़ा लॉस है। एंड व्हाट अबाउट दोज़ चिल्ड्रन जिन्होंने अभी-अभी अपने, वो बच्चे उसके बाद उतना ही चिल्लाते रहे, वो आदमी चुपचाप बैठा रहा। पोएट अब बहुत काम था और उसके बाद जब उसने अपना इंटरनल स्टेट पा लिया, उसके बाद उसने एक बहुत खूबसूरत पोएम और भी लिखी। सो इट्स नॉट अबाउट अदर, आउटसाइड एनवायरनमेंट नहीं इफेक्ट करता, हमें सिर्फ हमारे थॉट प्रोसेस जो हमें इम्पैक्ट करते हैं। सिचुएशंस विल कम एंड गो, लेकिन जो सिचुएशंस को अगर हम अपने कंट्रोल से जाने देते हैं, वो हमें बहुत इम्पैक्ट करती है। सो इफ अगर हम अपने थॉट को, अपने माइंड को कंट्रोल में रखें, माइंडफुल रहें, इफ हम इफ वी कैन चूज आवर थॉट कि हमें किस स्टेट ऑफ माइंड में रहना है, सो डेफिनेटली हम अपना परफॉर्मेंस, अपने रिलेशनशिप, सेल्फ ग्रोथ डबल कर पाएंगे अपनी लाइफ में। So we'll be understanding. I hope you like the story and get a gist कि माइंडफुलनेस क्या होती है और वो हमें किस तरह से फायदा देती है और किस तरह से हमारा स्टेट ऑफ माइंड चेंज होता रहता है सिचुएशन वाइज। बट इफ विल बी माइंडफुल, हम एक ही माइंडफुल स्टेट में अगर रहते हैं, तो देन विल बी experiencing more calmness and peaceful life. And if we are calm and peaceful, definitely our decisions going to be better. And if our decisions are going to be better, definitely हमारा life का जो path है वो बहुत smooth होगा. We'll be doing more mindful work. So सबसे बड़ा confusion ये रहता है कि is mindful is a meditation और व्हाट इज इट, कि मेडिटेशन क्या होता है और माइंडफुलनेस क्या होती है। सो मेडिटेशन इज लाइक मोर अबाउट क्वाइटिंग अ माइंड, रिलैक्सिंग अ माइंड। उस प्रेजेंट मोमेंट में हम अपने माइंड को बस फोकस करते हैं और अपने आसपास के जो हमारे थॉट्स चल रहे हैं उनको हम रोकने की कोशिश करते हैं। And it's a very good practice. Even we can say that a meditation is a part of mindfulness. Whereas mindfulness is getting aware about the present moment, how we are feeling in the present moment. उसको हमें डिस्ट्रैक्ट नहीं करना है, हमें सारी चीज़ों को टेबल पे लेके आना है, उसे एड्रेस करना है और इस प्रेजेंट मोमेंट पे रहना है। समटाइम व्हाट हैपेंस, हम अगर कुछ लोग मेडिटेशन प्रैक्टिस भी करते होंगे,
क्या मैं इस टाइम किसी से पूछ सकती हूँ, इफ एनीबॉडी कैन टेल मी इफ दे हैव एनी एक्सपीरियंस इन लाइक इफ दे डू मेडिटेशन, कैन दे शेयर देयर एक्सपीरियंस? Yes, I think so. Akshay is there who has raised their hand. You can ask your question or Yeah. you can share your experience. I've been doing meditation for last 1 month, and I'm experiencing about. Am I audible now? Yes, yes, you are audible very much. Nothing. Just when I woke early in the morning and I do meditation for half an hour. And initially, I started as a to control over focusing on my breathing for 15 minutes, and after for 15 minutes, I chatting the Om mantra. Okay. Okay, great. And I really wanted to learn about how actually this mind thought process works. So Okay. thank So this is a very wonderful practice you do, focusing on your breathing and then chanting. Chanting has a different effect on our body, on our mind, and it's altogether a different subject. So like, do if you're doing chanting, it's wonderful, क्योंकि chanting हमारे brain में waves होती हैं. जब हम chant करते हैं तो वो बोलते हैं ना तरंगे, तरंगे उसके साथ लय में आ जाती। सो ओम इज अ वेरी गुड मीडियम, क्योंकि वो हमें कहते हैं कि यूनिवर्स के साथ कनेक्ट कराता है, यूनिवर्सल लैंग्वेज के साथ कनेक्ट करा सकते हैं। तो ओम इज अ यूनिवर्सल लैंग्वेज, यूनिवर्सल मंत्रा। जब हमको कनेक्ट करना होता है या जब हमें इंटरनली भी कनेक्ट करना होता है, सो बिकॉज वी से दैट एंड यूनिवर्स इज आउटसाइड, द यूनिवर्स इज इनसाइड। जितना फिजिक्स हमारे आसपास काम करती है, उतनी फिजिक्स सेम एग्जैक्टली हमारे अंदर काम करती है। So bringing awareness to the present moment, and we'll see how we do that. So the basics of mindfulness is we have to set aside the time. You don't need to do a meditation or something. You just have to be present in the time. What is happening? अभी आप लोग जहां भी बैठे हो, जिस जगह भी बैठे हो, हैव यू एवर नोटिस्ड कि आपके सामने की वॉल पे क्या क्या है? जस्ट एक बार सामने देखिए, और आप शायद उस जगह पे रोज बैठते होंगे, स्टिल आपने क्या कुछ एक नई चीज वहां नोटिस की है? तो सोचिए, आपका माइंड पास्ट में भी है, फ्यूचर के बारे में भी सोच रहा है, जो टाइम अभी आया ही नहीं है, जो 5 साल पहले भी चीजें हो चुकी हैं, आप उसके बारे में भी सोच रहे हो, लेकिन इन दैट प्रेजेंट मोमेंट अभी आपके सामने की वॉल पे क्या है, वो शायद आप रोज वहां बैठते होगे तो शायद आपने नोटिस नहीं किया होगा। सो दिस इज लाइक, इस प्रेजेंट मोमेंट में आपके आसपास क्या है, उसको नोटिस करिए। लिव दिस मोमेंट, दीज थिंग्स आर विथ यू एज ऑफ नाउ, एंड देन एक्सेप्ट द प्रेजेंट एज इट इज। इट्स नॉट अबाउट कि हम जैसे मेडिटेशन में भी होता है, वो एक लेटर प्रोसेस में होता है, भी हम लोग बहुत कोशिश करते हैं कि अपने माइंड को क्वाइट करने की, डिस्ट्रैक्ट करते हैं, एंड दैट these mantras and these are also a medium to quiet our mind. बट जब भी हम कोई चीज को बहुत ज्यादा फोर्स करते हैं, रिप्रेस करते हैं, तो डेफिनेटली वो एक और बाहर निकल के आती है थोड़े टाइम में। सो रिप्रेशन ऑलवेज इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस। अगर हम चीजों को एड्रेस करके उसको खत्म कर देते हैं, सो दैट इज अ माइंडफुल प्रैक्टिस बेसिकली। इंस्टेड ऑफ क्वाइटिंग अ माइंड, वी शुड पुट द थिंग्स ऑन द टेबल, उसको रिजॉल्व करते हैं, तभी हमारा माइंड क्वाइट होगा। उस पर्टिकुलर मोमेंट के लिए तो वी कैन क्वाइट अ माइंड, पर लेटर एज वी गो वो उस टाइम नहीं होगा, उस टाइम हमारे रिएक्शंस वैसे ही होंगे। देन लेट गो योर जजमेंट्स। एवरी डे हमारे आसपास कितनी सारी चीजें होती हैं जिसे हम जज करते हैं। क्या हम अपने जीवन का कोई भी टाइम ऐसा होता है कि हम जज नहीं करें? और ये जजमेंट्स आते कहाँ से? जजमेंट कम्स फ्रॉम आवर पास्ट एक्सपीरियंसेस। दो अगर हमारी किसी भी चीज के बारे में कोई सोच है, वो हमारे कहाँ से आ रही है? हमारी पास्ट लर्निंग और हमारे पास्ट एक्सपीरियंस। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जो हमारी लाइफ में हमने एक्सपीरियंस किया है या जो हमारी लर्निंग रही है वो दूसरे की भी हो। ठीक है? सो दैट डजंट, तो हम हमेशा अपने एक्सपीरियंस की वजह से दूसरों को जज करते हैं। सो वी हैव टू एक्सेप्ट पीपल, ओके दिस इज माय लर्निंग बिकॉज आई हैड दिस एक्सपीरियंस। इट डजंट मीन दैट कि लोगों के भी वही एक्सपीरियंस होंगे। लेट मी शेयर दिस विद एन एग्जांपल। अगर हम यहाँ बैठे हैं और अभी हमारे सामने कोई आए यहाँ पर, या मैं ही हूँ, और आई जस्ट कीप स्टार्ट टॉकिंग अबाउट
कि भूत होते हैं, प्रेत होते हैं, तो कुछ लोग मानेंगे भी लेकिन डाउटफुल रहेंगे, उनको 100% इस बात पे यकीन नहीं होगा। अगर मैं यहाँ स्टोरी सुनाने लगूँ घोस्ट की स्टोरीज़ कि भूत होते हैं, आत्माएँ आती हैं और आपको लगेगा कि ओह गॉड! ये पागल है क्या? और मानोगे नहीं, कोई नहीं मानेगा और अगर किसी के कुछ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस रहेंगे तो वो भी डाउट के साथ रहेंगे। बट अगर मैं चली जाऊँ अफ्रीका में जहाँ पे एक आदिवासी ग्रुप रहता है या आदिवासी क्षेत्र में, वहाँ मैं ये बात बोलूँ, आई विल बी वेलकम्ड एंड एक्सेप्टेड क्योंकि वहाँ के लोग ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा मानते हैं। दे बिलीव क्योंकि वो लोग इंस्टेड ऑफ गोइंग इनटू ट्रेडिशनल मेडिकल ट्रीटमेंट्स एंड ऑल वो लोग तो यही सब करते हैं। वो बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं। वो लोग इष्ट देव में बिलीव करते हैं। वो लोग ये बिलीव करते हैं कि एज़ अ गॉड दे आर प्रेजेंट देयर। तो इट इज़ ऑल जस्ट पीपल्स बिलीफ्स क्योंकि वो उनके एक्सपीरियंस थे, उनकी लर्निंग थी। सो एवरी इंडिविजुअल हैव देयर ओन लर्निंग्स एंड देयर ओन एक्सपीरियंसेस। तो जो मेरा एक्सपीरियंस है वो आपका नहीं हो सकता, जो आपका एक्सपीरियंस है वो मेरा नहीं हो सकता। सो इंस्टेड ऑफ जजिंग पीपल एक्सेप्ट पीपल कि हाँ ठीक है, उन उन हो सकता है कि ये मेरी नॉलेज के बाहर हो सकती हैं ये सारी चीजें, ये जो मुझसे कह रहे हैं वो मुझे समझ में तो नहीं आ रहा है लेकिन हो सकता है शायद उनकी एक्सपीरियंस हो। सो जब कोई हमें एक ऐसी बात कहता है जो हमें पसंद नहीं आती तो हाउ डिस्टर्ब वी गेट। सो इंस्टेड ऑफ नॉट एक्सेप्टिंग पीपल एक्सेप्ट कि ठीक है मेरे एक्सपीरियंस में नहीं आया शायद उनके एक्सपीरियंस में आया होगा। तो हम अपने आप भी पीस बनाएंगे, उनके साथ भी पीस बनाएंगे और जब हम जज करते हैं लोगों को, है ना, वो कम हो जाएगा। देन रिटर्न टू ऑब्जर्विंग द प्रेजेंट एज इट इज। सो इट ऑलवेज हैपेंस दैट वी लॉस्ट इन आवर थॉट्स पास्ट प्रेजेंट, बट हमको अपने दिमाग को ट्रेन करना है कि इंस्टेड ऑफ थिंकिंग अबाउट द पास्ट, थिंकिंग अबाउट द फ्यूचर, वरिंग अबाउट द फ्यूचर, गेटिंग सैड अबाउट द पास्ट कि ऐसा होता ऐसा होता ऐसा होता, वाई जस्ट वी कांट लिव इन द प्रेजेंट। और ये इजी तो नहीं है, थोड़ा चैलेंजिंग है, बट इफ वी प्रैक्टिस वी आर गोइंग टू एंजॉय दिस प्रेजेंट मोमेंट। अगर आप अभी बैठे आंख बंद करके इस प्रेजेंट मोमेंट पे, तो दिस प्रेजेंट मोमेंट इज वेरी ब्यूटिफुल। जब आप उस पास्ट की कुछ चीजों के बारे में सोचते हैं या जब आप अपने फ्यूचर के कि मुझे ये करना है, कुछ फाइनेंशियली कुछ करना है, घर बनाना है, बच्चों की पढ़ाई करनी है या एक्स वाई जेड अपने ड्रीम्स पूरे करने, डेफिनेटली उनकी प्लानिंग होनी चाहिए। लेकिन ओवर एंड ओवर अगेन इफ वी स्टार्ट कीप थिंकिंग अबाउट दीज थिंग्स, हम प्रेजेंट मोमेंट में नहीं रह रहे। लेकिन जस्ट इस मोमेंट को रियलाइज करिए, जस्ट यू एंड मी लिसनिंग, गेटिंग अ नॉलेज और वट एवर, दिस मोमेंट दिस इज ब्यूटिफुल। सो एवरी हेयर एंड नाउ मोमेंट इज ब्यूटिफुल। एंड इफ वी आर गोइंग टू वरी, जब हम वरीनेस में होते हैं या सैडनेस में होते हैं, किसी एक इवेंट के बारे में सोचते हैं जो हो चुका होता है, डेफिनेटली दिस इज नॉट अ प्लेजेंट फीलिंग, वो हमें फीलिंग अच्छी नहीं देता। तो व्हाई डोंट वी ट्रेन अ माइंड टू चूज अ बेटर फीलिंग। तो उस फीलिंग में ज्यादा रहिए जो हमें बेटर फीलिंग देता है, नॉट क्योंकि हम अपने ब्रेन को ट्रेन कर चुके होते हैं कि हमें वरी में रहना है, हमें फ्यूचर के बारे में सोचना है, हमें फ्यूचर के बारे में सोचना है, या हम पास्ट के बारे में ऐसा क्या हुआ था क्या हुआ था। ट्रेन अगेन, जस्ट ट्रेन योर ब्रेन एंड बी काइंड टू योर माइंड। सो होगा अब जब हम ये प्रैक्टिसेस को स्टार्ट करेंगे, सो इट विल हैपन सम टाइम। हम पूरे टाइम एक दिन में कोई चीज नहीं सीखते। होगा कि अभी आप कोशिश करोगे हेयर एंड नाउ में रहने की, फिर आपका माइंड भागेगा पीछे, फिर आपका माइंड भागेगा आगे। सो देन टेल योरसेल्फ दैट इट्स ओके, सम टाइम इट हैपन। अगर आप एक दिन में 5 मिनट या 5 मोमेंट ऐसे निकाल लेते हैं जहां पे आप प्रेजेंट में रह रहे हो, दैट मीन्स दैट यू आर ऑन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। अगर आप 5 मिनट कोई चीज कर सकते हो, मतलब कि आप 24 घंटे करने के लिए केपेबल हो। सो यू हैव टू मोटिवेट योर सेल्फ टूडे एट दैट 5 मिनट्स। सो आफ्टर 2 years, मे बी 5 years, हमें किस चीज की जल्दी है? दिस इज आर टेम्पल, दिस बॉडी इज आर टेम्पल। शायद हो सकता है कोई चीज एक दिन में ना हो लेकिन 6 महीने में तो हो ही जाएगी। सो जस्ट ट्रेन एंड बी जेंटल। आज नहीं हुआ या एक पूरा दिन ऐसा निकल गया जहां हम अब जो हम करना चाहते थे या काम रहना चाहते थे नहीं रहे, लेकिन हम पूरे दिन में 5 मिनट भी रह लेंगे। सो दैट मीन्स इफ वी आर केपेबल टू हैव पीस in a life for 5 minutes, that means we are capable for doing the same thing for 24 hours. But just be gentle to yourself, be calm, and keep motivating yourself. So, there are 3 dimensions of mindfulness: the internal dimension, the relational dimension, and the developmental dimension. So,
Internal dimension is how we relate ourselves directly affects we focus on attention, how we feel, belief. The factors directly influence the outcome we generate. हमारे थॉट, या जैसे कि हमने अभी बात करी, हमारे एक्सपीरियंस, जब हम अपने बारे में क्या सोचते हैं, मेरा मेरे बारे में क्या थॉट है, हैव यू एवर गिवन अ थॉट कि मैं अपने बारे में क्या सोचता हूँ, मेरा अपने बारे में क्या विचार है, हाउ काइंड ऑफ पर्सन आई एम। हम दिन भर ये तो सोच लेते हैं, ये ऐसा, इसने ये पहना, उसने वो पहना, ये अच्छा नहीं है, हम कितने जजमेंट्स बनाते हैं, बट एवर वी हैव थॉट दैट व्हाट वी थिंक अबाउट आवरसेल्फ, हम अपने बारे में कैसा फील करते हैं। अगर हम अपने बारे में अच्छा फील करते हैं, सो दैट्स अ गुड थिंग। एंड इफ देयर आर सम, हम हर चीज के बारे में अच्छा फील नहीं कर सकते, सो इफ यू फाइंड दैट क्या एरिया है, हाउ वी फील आवर सेल्फ, व्हाट वी बिलीव इन, व्हाट आर थिंग्स, सो डेफिनेटली हमें वो मार्जिन मिल जाएगा अपने आप को इम्प्रूव करने का। एक फोकस बाहर से हमें इंटरनल लेके आना पड़ेगा। देन दैट रिलेशनल डायमेंशन, हाउ वी रिलेट टू अदर्स। क्या आपने कभी अपने आसपास के लोगों के साथ अपनी एनर्जी देखी है? देयर विल बी, जब हम ऑफिस में रहते हैं, घर में रहते हैं, हम किन लोगों से कनेक्ट करते हैं और किन लोगों से कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। तो पहले तो ये देखिए कि किन के साथ हमारी वाइब मैच करती है। डेफिनेटली जिनके साथ हमें पॉजिटिव एनर्जी आती है, वाइब मैच करती है, तो हम डेफिनेटली उन्हीं से बात करते हैं, हमें उनके साथ रहना अच्छा लगता है। क्योंकि हमारा एक वाइब्रेशन रहता है, एक फ्रीक्वेंसी हमारी मैच कर जाती है उनके साथ में। सेकेंडली, कुछ लोग हमारे लाइफ में ऐसे भी होते हैं जिनके साथ हमारी फ्रीक्वेंसी मैच नहीं करती, हमें अच्छा नहीं लगता, लेकिन हमें उनके साथ रहना है। ऑफिसेज में भी ऐसे लोग होते हैं, घर में भी ऐसे लोग होते हैं कि जैसे ही कोई आया, हमें वो एनर्जी ही नहीं अच्छी लगती, हम वी डोंट जस्ट फील लाइक। तो एक तो ये हो सकता है कि जिनके साथ हमारी एनर्जी बहुत ज्यादा मैच नहीं कर सकती, ट्राई टू यू नो थोड़ा सा उनके साथ आप जबरदस्ती अगर उनके साथ रहोगे, ठीक है, सो डेफिनेटली आप डिस्टर्ब रहोगे। तो फाइंड द वेज कि आप एक लिमिटेड बाउंड्री कैसे बना सकते हो। कट नहीं करना है, इग्नोर नहीं करना है, लेकिन एक बाउंड्री कि लिमिटेड कन्वर्सेशन, लिमिटेड थिंग्स, जितनी जरूरी चीजें हैं उतनी ही करें, उसके आगे आप जिनको आप पसंद नहीं करते उसमें अपनी एनर्जी कम वेस्ट करें। जो चीज आपको अच्छी लगती है उसमें अपनी एनर्जी वेस्ट करें, बिकॉज पॉजिटिव 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 होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, ट्राई टू आइडेंटिफाई कि ये एनर्जी मैच क्यों नहीं कर रही है, ऐसा क्या प्रॉब्लम है जहां मुझे इस इंसान के साथ कनेक्शन में प्रॉब्लम आ रही है। सो इफ यू आर एबल टू आइडेंटिफाई, इफ यू गेट द अवेयरनेस अबाउट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू ऑफ अस, डेफिनेटली हम उस पे काम कर पाएंगे। हम उन्हीं चीजों पे काम कर सकते हैं जिनके बारे में हमें पता होता है। तो पहले वो पता लगाना, दैट अवेयरनेस इज इंपॉर्टेंट। The developmental dimension, how we relate to the experience we had to our past influence our experience in life in the present, and the quality of expectations we have for the future. Definitely इसको हमने भी थोड़ा सा पहले भी डिस्कस किया था कि हमारी जो पास्ट लर्निंग होती है, हमारे जो पास्ट एक्सपीरियंस होते हैं, वही तो हमारा फ्यूचर डिफाइन करते हैं। तो हमें इन सारी चीजों में ना एक सिंक्रोनाइजेशन लेके आना चाहिए। क्या जो मुझे आज चाहिए या जो मुझे फ्यूचर में चाहिए, क्या वो मेरे पास से आ रहा है? सो वी नीड टू आइडेंटिफाई कि अगर मुझे अपना एक पर्सनल डेवलपमेंट चाहिए, तो मुझे अपने पास्ट, अपने प्रेजेंट और अपने फ्यूचर पे एक सिंक्रोनिसिटी होनी चाहिए, एक अलाइनमेंट होना चाहिए। इट्स नॉट दैट कि मेरा पास्ट क्या था और जो मेरा फ्यूचर होगा उसके बारे में बिल्कुल ही मैं कनेक्ट नहीं कर पा रही हूँ। My inside, my subconscious mind, my conscious mind is not able to connect my past and future, तो definitely आपका present भी बहुत disturb होगा। So we have to make the alignment between past, present and future, then हमारा एक development बहुत अच्छा होगा। then then this is the full cycle model। कैसे होता है जब हम माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हैं, तो हम अपने आप से कुछ ये क्वेश्चंस पूछते हैं। इसको हम सारा, बिकॉज वी हैव अ वेरी लेस टाइम, तो हम इन सारे क्वेश्चंस को डिस्कस तो नहीं कर पाएंगे, बट इफ यू कैन हैव अ क्लिक ऑफ दीज पिक्चर्स, और आप इन क्वेश्चंस को, और आप खुद से इन क्वेश्चंस के साथ बैठें और इनको आंसर करने की कोशिश करें। सो वंस यू विल एबल टू आंसर दीज क्वेश्चंस फॉर योरसेल्फ, आपको बहुत क्लैरिटी आने वाली है।
अपने लिए। जब हम यहाँ पर अपने आप को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, हमारे आसपास के लोगों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं और हम कैसे हैं वो हमें पता चलेगा। हमारे आगे की सेल्फ प्रिपरेशन हमें पता चलेगी। सो दीज आर द क्वेश्चन यू कैन आस्क योरसेल्फ। व्हाट डू आई स्टैंड फॉर? आप हो कौन? व्हाट डू आई वांट इन लाइफ? एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आई आल्सो फॉरगेट टू राइट इन इट। जब हम ये लिखते हैं कि व्हाट डू आई वांट फ्रॉम माई सेल्फ एंड फ्रॉम माई लाइफ, देयर इज वन मोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज, यू कैन राइट इट डाउन, नोट इट डाउन, what what the things I do not want in my life। अगर ये इन दो क्वेश्चंस का आपने आंसर दे दिया ना, सो आपकी लाइफ में काफी चीजें सॉर्टेड हो जाएंगी एंड यू विल बी एबल टू प्रायोरिटाइज योर थिंग्स। सो ऑलवेज जब भी हम कुछ करने जाते हैं, सो यू शुड बी क्लियर विथ योर एजेंडा ऑफ लाइफ, यू नो, पर्पस ऑफ लाइफ, व्हाट आई वांट एंड व्हाट आई डोंट वांट। सो ये सारे क्वेश्चंस को आप आई थिंक सब लोग ने एक स्क्रीनशॉट ले लिया होगा एंड आफ्टरवर्ड्स, आफ्टर दिस वर्कशॉप, अपने आप से ये क्वेश्चन जरूर पूछिएगा। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई वुड लाइक कि if anybody has some questions so they can ask, so let's continue। ठीक है, अभी हम एक छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं फॉर माइंडफुलनेस, जिसे हम एक मिनट में कर सकते हैं, कहीं भी हो, जब हम कहीं भी उलझन में फंसे हुए हो या ऐसी कोई चीज इवेंट आने वाली हो, कोई बॉस को प्रेजेंटेशन देना हो, घर में कोई इंपॉर्टेंट चीज आने वाली हो। तो लेट्स जस्ट सिट कंफर्टेबली। आई रिक्वेस्ट ऑल टू सिट comfortably and just close your eyes, and this process is called box breathing। So close your eyes, and when I will count from 1 2 3 4, you will inhale, then you will I will count 1 2 3 4, you will hold your breath, and then I will count 1 2 3 4, then you will exhale slowly। Whenever you exhale, exhale slowly, and then at the bottom of your breath, I will count 4, you have to keep your breath at bottom, and then this is called box breathing or square breathing। So any point of time अगर आप थोड़े से anxious हो रहे हो, किसी चीज को लेके घबराहट हो रही हो, तो ये क्विक रेमेडी है। सुबह आप अर्ली मॉर्निंग कर सकते हैं, सोने से पहले कर सकते हैं। अगर आप इसके कुछ 10 राउंड्स भी करेंगे, दिस इज वेरी बेनिफिशियल। लॉन्ग टाइम के लिए करेंगे फॉर 10 to 15 मिनट्स, वेरी मच बेनिफिशियल। नहीं तो कम से कम 10 टाइम्स तो आपको डेली करेंगे, यू विल फाइंड अ वेरी डिफरेंट चेंज इन योर सेल्फ विद इन 2 to 3 months। So let's start। Close your eyes, just relax and bring your focus to your breathing। Just breathe in 1 2 3 4, hold your breath 1 2 3 4, and exhale slowly 1 2 3 4, and now bottom of the breath 1 2 3 4, one more round, inhale 1 2 3 4, hold 1 2 3 4, exhale 1 2 3 4, and bottom of your breath 1 2 3 4। वेरी गुड, थैंक्स ऑल। होप ये बहुत इजी है, एंड दिस एक्सरसाइज इज गोइंग टू ब्रिंग यू बैक इमिजिएटली फ्रॉम जहां भी आपका माइंड डिस्ट्रैक्टेड रहता है, ब्रिंगिंग टू द फोकस। सो ये एक्सरसाइज करने से कुछ लोग, जैसे अभी अक्षय जी ने बोला था कि वो प्राणायाम करते हैं, प्राणायाम भी हमारी ब्रीदिंग पे रहता है। तो दिस इज द सिंपल फॉर्म। अगर आप प्राणायाम कर रहे हैं तो वो बहुत बेटर है। प्राणायाम भी अलग अलग तरीके के होते हैं। सो सिंपल, इफ हमारी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट मूवमेंट क्या होता है कि हम बस वी आर ब्रीदिंग, we are breathing। So when we focus our breathing, that means we are in the present moment, we are not in the past, we are not in the future। तो जब भी आपको लगे कि आप बहुत ज्यादा डिस्टर्ब्ड हो,
हमारे सबके लाइफ में चैलेंजेस आते हैं, आपकी लाइफ में चैलेंज आते हैं, मेरी लाइफ के चैलेंज आते हैं। कभी-कभी हम ट्रैफिक में ही फँस जाते हैं। हमें ऑफिस जल्दी जाना है एंड वी आर स्टक, और वो इरिटेशन, वो गुस्सा, क्योंकि बॉस को जाके जल्दी से हमको प्रेज़ेंटेशन देना है या रिपोर्टिंग टाइम से करनी है, वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, या घर जाना है, वाइफ इज़ वेटिंग, या स्पेशली फॉर द मदर्स घर पे जाना है, वी आर स्टक इन द ट्रैफिक, बच्चे बैठे हैं, खाना बनाना है, बहुत पढ़ाई करानी है, बहुत सारे काम होते हैं एंड वी आर इनटू रनिंग इनटू द लाइफ, है ना? कितने सारे काम होते हैं, बट ये हम फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, कल क्या करना है। अब फँस गए तो फँस गए ट्रैफिक में, आप वो तो सिचुएशन आपके कंट्रोल में है ही नहीं। जब आगे की गाड़ी बढ़ेगी, तभी निकलोगे। तो वो इरिटेशन और फ्रस्ट्रेशन का कोई मतलब ही नहीं है। सो जस्ट वी आर बॉदरिंग आवरसेल्फ, कैसे निकलेंगे, कैसे निकलेंगे, कैसे निकलेंगे? Bring yourself into the present moment. Do this box breathing exercise, and then find the difference. सिचुएशन तो बदलने नहीं वाली है, कोई एक ही चीज़ बदलेगी, वो हो आप। So only one thing on this universe we can work on, the person is ourself. अगर हम अपनी लाइफ में ये एक्सपेक्ट करते रहेंगे कि कल मेरा बॉस बदल जाएगा, उनका एटीट्यूड बदल जाएगा, बॉस सोचेगा कि मेरे एम्प्लॉइज़ चेंज हो जाएँगे, वो अलग एकदम एक्टिव हो जाएँगे काम करने के लिए, वाइफ, हस्बैंड, बच्चे बदल जाएँगे, वो हमारे हिसाब से चलने लगेंगे, हस्बैंड वाइफ की बात मानने लगेगा, वाइफ हस्बैंड की बात मानने लगेगी। दिस इज़ नॉट गोइंग टू हैपन। इंस्टेड ऑफ दिस, अगर हम इंटरनल हो जाएँगे, so definitely things, you will see the difference. Instead of expecting from others, we should, हम अपने अंदर क्या चेंज कर सकते हैं, हमें पहले वो फोकस करना चाहिए, एंड रियली दैट इज गोइंग टू मेक अ डिफरेंस. At this point of time, I have a question from Shivani, that what's about CBT? CBT is a cognitive behavioral therapy where we work on the thought process. So it's like our thought, our emotions, and our behaviors. So how it, as I've already discussed, कि हमारे thoughts जो होते हैं वो कहाँ से आते हैं, हमारी past learning से, हमारे past experiences से, और उसी से हमारी फीलिंग्स जनरेट होती हैं, और जैसी हमारी फीलिंग होंगी वैसा हमारा बिहेवियर होगा. सो आई गिव यू एन एग्जाम्पल हेयर. आप जहां भी अभी बैठे हो, जहां भी बैठे हो, है ना, वहां पर अभी एक टाइगर आ जाए, क्या हो जाएगा? सब डर के ना अपनी चेयर पे बैठ जाएंगे, एंड तो क्या होगा, एक सिचुएशन आई सबके, है ना, अभी यहाँ मेरे सामने में आएगा, मैं भी डरने वाली हूँ, ठीक है. सो बिकॉज एक इवेंट हुआ, हमें थॉट में क्या है, टाइगर. टाइगर मतलब हमें बचपन से बताया गया कि इससे डरना है, डर फीलिंग होती है. तो जैसे ही वो डर वाली फीलिंग हमारे अंदर आएगी, हमारे बिहेवियर कैसे हो जाएंगे, भागना है, वी विल स्टार्ट थिंकिंग अबाउट, है ना, कि हमको कैसे अपने आप को यहाँ से बचाना है, इजंट इट? मगर एक इंसान जो जंगल में ही रहता है, आदिवासी है, उसकी आदत है शेरों के पास रहने की, या सर्कस में जो शेरों के साथ में रहते हैं, उसका ये बिहेवियर नहीं होने वाला है. वो जाएगा, उसके पास हाथ भी रखेगा. वी हैव सीन मेनी वीडियोस, देयर आर पीपल जो शेरों के साथ बैठ के ऊपर नीचे फोटो भी खिंचाते हैं. उनको तो डर नहीं लगता, बिकॉज हमारा थॉट प्रोसेस ऐसा रहा है, क्योंकि हमारे पास लर्निंग ऐसे रहे कि हमें बताया कि शेर आएगा तो डरना है, बिकॉज वी लिव इन अ सिटी एरिया. जो लोग इतना इंटरनल जंगल में रहते हैं, फॉरेस्ट ऑफिसर्स होते हैं, वो भी डरते हैं, लेकिन वो उनका काम है, तो वो इतना तो नहीं डरते होंगे. अगर उनको लगता होगा तो वो वहां होते नहीं. सो इट्स जस्ट अबाउट आवर थॉट प्रोसेस. तो जब हम अपने थॉट पे काम करते हैं, तो हमारी फीलिंग्स चेंज हो जाती हैं. तो वो डर वाली फीलिंग तो रहेगी नहीं, अगर मैं मान लो कहीं और से होती तो. हुँ? अगर मैं एक फॉरेस्ट ऑफिसर होती तो मैं इतना तो टाइगर से नहीं डरती. तो डेफिनिटली मेरी फीलिंग्स अगर बदलती हैं, तो मेरा बिहेवियर भी बदलेगा. आई विल बी कॉन्फिडेंट, अच्छा टाइगर आया है, सो इट्स जस्ट एन एग्जांपल. मैं भी डरने वाली हूँ. हाँ, मेरी चैनलाइजेशन पास्ट एक्सपीरियंसेस भी ऐसे ही रहे कि मुझे शेर से डरना है तो मैं डरूंगी ही. बट अगर मुझे ये अवेयरनेस हो जाए, तो आई कैन ईज. सो सिमिलरली जब हम इसको थेरेपेटिक मॉडल्स में लेते हैं, तो हम अपने थॉट प्रोसेस पे काम बहुत करते हैं. क्योंकि जब हमारे डिस्टरबेंस कैसे होते हैं कि कुछ भी पास्ट लाइफ ट्रॉमा होता है, कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं जो हम अपने दिमाग से निकाल नहीं पाते. इट कुड बी लॉस ऑफ सम आर डियर वंस, breakups,
डिवोर्स, नेचुरल कैलेमिटीज, कोविड हुआ, ऐसा कुछ भी, जब हम इस तरह के ट्रॉमेटिक सिचुएशंस से डील करते हैं, तो अगर हम अपना थॉट प्रोसेस पे काम करते हैं, अगर हमारा थॉट हम चेंज कर दें, ऑल्टर कर दें, विच सीबीटी हेल्प्स इन दैट चेंजिंग, गिविंग अ ब्रॉडर विजन टू इट, तो हमारे फीलिंग्स चेंज होंगे, हमारे बिहेवियर चेंज होंगे. सो दैट इज सीबीटी. होप शिवानी जी, आई हैड मेड जस्टिस टू योर क्वेश्चन. And then I have a question from Dr. Mala. Is there any system for developing mindfulness day by day? Yes, definitely. We will be discussing this in just few after few more slides. There is again a question from Mr. Akshay. Hanji. Am I audible? Yes. एक्चुअली मैम आई हैव बीन डूइंग मन से कर रहा हूँ, तो मैंने पिछले 10 दिनों में मैंने ऑब्जर्व करा कि मैं क्या क्या सोच सकता हूँ, और लाइक मैं शांत रहकर भी लाइक काफी चीजें मतलब थॉट्स में जज कर रहा हूँ कि ये थॉट्स आ रहे हैं, बट जो आपने ये भी एक्सरसाइज कराई है ऑलरेडी मैं उसको कर रहा हूँ. तो लाइक मैम कई बार ये होता है मैं 1 घंटे मेडिटेशन करता हूँ, बट वो मुझे ना डोपामिन रिलीज नहीं होता है, कभी मेरे को रिग्रेट होता है कि यार अभी तक तो मैं निकल ही नहीं पाया, लाइक मैंने कर ही नहीं पाया आज, यार आज तो मैं फोकस ही नहीं कर पाया, तो उससे डील कैसे करें लाइक. पहले अगेन जैसे मैंने बोला पिछली बार कि बी काम टू योर सेल्फ, काइंड टू योर सेल्फ. इट्स ओके, आज नहीं कर पाए, कल तो कर लिया था ना. तो अपने आप पे इतना टफ नहीं हो, हर दिन एक जैसा नहीं हो सकता. हम हर दिन, किसी दिन फेलियर होगा, किसी दिन हम सक्सेसफुल होंगे. पहला एक्सेप्टेंस. अपार्ट फ्रॉम दैट, सबसे बेहतर तरीका है जब हम अपने माइंड को क्वाइट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम रिप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं ना, तो रिप्रेशन में क्या होगा, वो चीजें और फ्लैश होंगी. जितना आप उसे प्रेस करने की कोशिश करेंगे, आप 1 घंटा, आधा घंटा, 10 मिनट, तो एक दिन उसको क्वाइट कर लेंगे, लेकिन वो थॉट्स तो वापस बाहर ही नहीं निकले, वो तो वहीं घूम रहे हैं ना आपके माइंड में ही. सो बेटर कि जब आपके पास थॉट्स आने लगे, एक दिन बैठिए, इंस्टेड ऑफ क्वाइटिंग योर माइंड, ब्रिंग ऑल द थॉट्स इन, लेट एक्सेप्ट करो, आओ देखो, सारे थॉट्स को आने दीजिए, देन ऑब्जर्व दैट थॉट्स. हम ये इसको डिस्कस करने वाले थे एक्चुअली, बट मैं यही डिस्कस कर देती हूँ. ऑब्जर्व एवरी थॉट, क्या आ रहा है, क्या आप अपने जो भी थॉट्स आ रहे हैं उनको ऑब्जर्व करिए, आने दीजिए. इंस्टेड ऑफ सप्रेसिंग देम, डोंट क्वाइट देम, ब्रिंग देम, और उसको लिख लीजिए. लिख लीजिए और उससे क्वेश्चन पूछिए. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई दिस थॉट इज कमिंग टू मी, व्हाई दिस थॉट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इज कमिंग टू मी. आपका इंटरनल ही आपको आंसर आएगा. डू दिस एक्सरसाइज कि इंस्टेड ऑफ सप्रेसिंग योर थॉट्स, put them on the table, write it, ask the question, what is the reason of this thought coming into my mind now. So definitely your internal self will definitely give your answer. ह्यूमन माइंड कैसा होता है ना कि उसको सारी चीजें कंप्लीट चाहिए होती हैं. ठीक है, इट्स ह्यूमन माइंड. उसको अगर कहीं भी चीज में ब्रेक दिखेगा ना, तो वो खुद से उसको भरने की कोशिश करेगा. इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, जब हमारे पास आधी इंफॉर्मेशन रहती है ना, तो हम खुद की स्टोरीज कुक करते हैं और उस इंफॉर्मेशन को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं. तो और फिर हम खुद भी सेटिस्फाइड नहीं होते, क्योंकि हमें पता होता है कि ये स्टोरी सिर्फ कुक करी हुई है. सो ये जो इंटरनल डिस्टर्बेंस होता है ना, ये इसीलिए होता है. सो बेटर ब्रिंग दैट थॉट आउट फ्रॉम योर माइंड, राइट इट डाउन, और उसकी रियल रूट को पहचानने की कोशिश करें. बिकॉज ह्यूमन माइंड को कभी कभी हमें ट्रिक करना पड़ता है, क्योंकि इट्स मेड लाइक दैट. जब तक उसको वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी, है ना, वो सेटिस्फाई नहीं होता. सो टू वो क्या करता है, फिर स्टोरीज कुक करने लगता है. हम खुद ही आधी चीज पता होगी, उससे ज्यादा हम स्टोरीज अपनी खुद के माइंड में बना लेंगे. अच्छा, उसने मेरे बारे में ये कहा था, एक चीज सुनेंगे और 10 बातें में हम खुद ही ऐड कर लेंगे, उसने ये भी कहा था, ये भी कहा था, विच इज नॉट द रियलिटी. सो यू हैव टू आस्क योरसेल्फ, इज दिस अ फैक्ट, इज देयर एनी एविडेंस कि ये बात जो मेरे दिमाग में आ रही है, ये मेरी खुद की बनाई हुई है, या कि उसमें कितनी रियलिटी है, हाउ मच परसेंटेज इज इट करेक्ट. आस्क सच क्वेश्चंस विथ योरसेल्फ. I have a question. Hope Aksharji, you got the answer. Yes, thank you. Okay. Hope this will be helpful. Then I have a question: at how many times do it every day for to implement in regular basis? As many time as you can. Whenever you get time, you have to be just present. Box by exercise.
आप मॉर्निंग में कर सकते हो, आप रात में कर सकते हो सोने से पहले, आप दिन भर कर सकते हो। जब भी आपको लगे कि आपके पास टाइम है, एनी पॉइंट ऑफ टाइम, नो लॉस। बेटर है कि आप प्रेज़ेंट मोमेंट में रहोगे। सो विल बी आगे मैं प्रेज़ेंटेशंस पे आती हूँ वापस। सो व्हाट आर द एसेंशियल ऑफ माइंडफुलनेस? नॉन जजमेंटल ऑब्जर्वेशन। अब आप अपने आसपास की जब चीजों को ऑब्जर्व करो, तो जस्ट स्टार्ट विद द थिंग, दिस थिंग, बिना जजमेंट के बस देखिए उसको, जस्ट ऑब्जर्व करिए, वो ऐसा है, वो ऐसा क्यों है, इंस्टेड ऑफ एक जजमेंट के बिना उसको कोशिश करिए। यू हैव टू ट्रेन योर ब्रेन। इनिशियल लेवल पे नहीं होगा, क्योंकि हम आदत हो गई है हमारे ब्रेन को, वी हैव ट्रेन दैट, हमको हर चीज को जज करने की आदत हो गई है। बट इसको आप प्रैक्टिस करिए कि बिना जजमेंट के आपके दिमाग में क्या आंसर्स आते हैं, और जजमेंट के साथ आपके दिमाग में क्या आंसर आते हैं लोगों को लेके, चीजों को लेके। प्रेजेंट मूवमेंट अवेयरनेस आपकी फोकस डेफिनेटली करता है शार्प। आप कनेक्ट हो जाते हो, आप में मोर कंपैशन आता है, ग्रैटिट्यूड आता है, एक्सेप्ट एंड लेटिंग गो, पेशेंस, कामनेस एंड इंटीग्रेशन ऑफ माइंड, हार्ट एंड बॉडी। माइंडफुलनेस एज अ वे ऑफ लिविंग, हम चीजों को सिर्फ देखें नहीं, ऑब्जर्व करें। इसमें हमेशा डिफरेंस होता है। जब हम किसी चीज को देखते हैं, लुक, व्हेन वी लुक, दैट मीन्स कि हम बस एक नजर मारी और हम अपने ही थॉट में हैं। बट व्हेन वी ऑब्जर्व, तो हम उसकी चीजों के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। नॉट जस्ट सॉलो, टेस्ट। कितनी बार होता है कि हमने अपना खुद का खाना टेस्ट किया होता है। आज आप सब टिफिन लेके आए होंगे, दिन में बैठ के लंच करेंगे, बातें करते जाएंगे और खाना खाते जाएंगे। कुछ एक आध इनिशियल लेवल पे तो आपको टेस्ट रहता है, लेकिन क्या आप पूरे कंटिन्यूस अपने खाने को टेस्ट करते हो? नहीं, बिकॉज पूरे टाइम योर माइंड इज रनिंग। तो जब आज आप खाना खाएं, तो हर उस बाइट को एटलीस्ट टेस्ट करें, तभी तो हमारी बॉडी को लगेगा। दैट इज माइंडफुलनेस। वेन यू थिंक, थिंक मत करिए, फील करिए। पूरे टाइम हमारे लाइफ में कितने सारे दिन भर कितने सारे थॉट्स आते हैं, अपनी फीलिंग्स पे ध्यान दीजिए। ये वाले थॉट्स जब मेरे दिमाग में आया है, तो मुझे क्या फील हो रहा है, इंस्टेड ऑफ एवरी टाइम गोइंग इनटू द थॉट प्रोसेस, ये हुआ वो हुआ, हाउ आई एम फीलिंग नाउ। क्या मैं इस फीलिंग में अच्छा हूँ? क्या मुझे इस टाइम अच्छा लग रहा है? नहीं, मुझे इस टाइम अच्छा नहीं लग रहा है। तो अब जब मुझे पता है कि मुझे इस टाइम अच्छा लग रहा है, तो अच्छा लग रहा है, यू विल फील गुड। एंड जिस मोमेंट आप रियलाइज करो कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, आप खुद भागोगे सोल्यूशंस की तरफ कि मुझे क्या करना चाहिए कि मुझे अच्छा फील हो। सो instead of going into the practices of thinking, bring your focus to your feelings, how you are feeling. Am I feeling, feelings कैसी हो सकती हैं, that emotions, am I feeling angry, am I feeling sad, I'm feeling happy, I'm joy, irritated, सरप्राइज्ड, ये सारी फीलिंग्स होती हैं। तो अपने फीलिंग्स को आइडेंटिफाई करना सीखिए कि मेरी अभी की फीलिंग क्या है, मेरी शाम की फीलिंग क्या होती है। जैसे मेरी रात की फीलिंग होती है आफ्टर 10 o'clock, मेरी फीलिंग होती है टायर्डनेस, अभी मुझसे कोई बात नहीं करो, आई एम टायर्ड, दिन भर बहुत हो जाता है। सो दैट इज माई फीलिंग एंड आई हैव एक्सेप्टेड दैट फीलिंग। मेरे घर वालों को पसंद नहीं आता, अरे माय सन सेज कि मम्मी आप तो 10 बजे के बाद ऐसे थक जाती हो, सुनती नहीं हो कुछ। सो बट आई हैव एक्सेप्ट, ओके, दिस इज माय फीलिंग बिकॉज आई एम टायर्ड। हुँ, अगर मैं उसको थॉट प्रोसेस में डालूँ, मुझे ये करना है, दैट एक्सेप्टेंस इज़ अ वेरी गुड की टू अंडरस्टैंड आवरसेल्फ एंड अदर्स। सो नॉट जस्ट एक्जिस्ट, लिव। कोशिश करिए उस हर एक मोमेंट को लाइवली बनाने की। हम मशीन जैसे भागते चले जा रहे हैं ना, आर्न्ट वी अ रोबोट? आपने सोचा हमको और रोबोट्स में क्या डिफरेंस है? हम भी पूरा रूटीन ऐसे ही होता है, सुबह से उठते खटखट, खटखट, खटखट मशीन जैसे चलते हैं। But the difference is the feelings and the emotions. So the way we feel and the way we have emotions, we'll do it. हम अपने आप को lively, मतलब we are different from the robots. Again, we have discussed that we have to be accept. If we are imperfect, हमेशा अपने आप को perfect बनाने में मत रहिए. We can be imperfect, but make peace with this imperfection. There are people, those who are, I just met people जिनके हाथ नहीं होते हैं, कुछ लोग डिप्रेस्ड होते हैं उस चीज को लेके, आई कैन नॉट डू एनीथिंग, बट देयर आर पीपल एंड देयर आर एग्जांपल्स कि जिनके बॉडी पार्ट डिसेबल्ड होते हैं, बट दे आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल इन लाइफ। दे हैव एक्सेप्ट देयर imperfection, accept, and they're doing well in life. So if we make peace with our imperfections, we'll definitely are in the path of self growth. Again, acceptance we have discussed,
joy is nowhere, joy is now here, इस प्रेजेंट मोमेंट में. So, better benefits of mindfulness is improve focus, attention, reduce anxiety, depression, chronic pain, stress. We have a better sleep also. You should also, at this point, I will like to tell you कि आपकी स्लीप कैसी है, ये आपके डेली रूटीन पे बहुत मैटर करता है. सो एवरीवन शुड वर्क ऑन देयर 7 to 8 hours ऑफ स्लीप. अगर नहीं आ रही है तो फाइंड द वेज और कंसल्ट सम प्रोफेशनल कि आपको बेटर स्लीप आए. अगेन वी हैव डिस्कस सारी चीजें. ये माइंडफुलनेस कहाँ से आएगी? एक दिन में कुछ नहीं होने वाला, प्रैक्टिस से ही आएगी. आज मैंने किया, फिर ऐसा नहीं कि मेरे को 1 महीना हो गया लेकिन मैं नहीं कर पा रहा, या मुझसे नहीं हो रहा. इट्स ओके. इफ यू हैव स्टार्टेड इट विल कम. प्रैक्टिस. सोचिए, जो प्रैक्टिस आपने अपने लाइफ में 30 साल 40 साल नहीं की, वो 1 महीने में आ सकती है क्या? बी काइंड टू योर सेल्फ. अगर कोई चीज मैंने अपनी लाइफ में 25 साल नहीं की, 30 साल नहीं की, तो 4 महीने में कैसे कर सकते हैं? यू हैव टू गिव टाइम टू योर सेल्फ. यू हैव टू ट्रेन योर माइंड. अगर 30 साल कोई चीज आपने कुछ अलग ट्रेनिंग ली हुई है, तो 2 महीने में तो नहीं होने वाला. गिव योर सेल्फ टाइम. लेकिन वो टाइम देंगे तो 40 साल की प्रैक्टिस हो सकता है 6 महीने या 2 साल में हो जाए. तो इतना तो अपने आप पे टाइम दो अपने आप को. अगेन, yes, now mindful walking. This is a very easy टेक्निक टू बी माइंडफुल. कभी आप जब चलते हो तो आपने, कैसे हम सीढ़ियां चढ़ के आते हैं, ऑफिस जाते हैं, घर में रहते हैं, तो कभी आपने अपने आप को नोटिस किया है? हम हमेशा थॉट्स में ही रहते हैं. जस्ट फील दैट हाउ यू आर वॉकिंग. हाउ, जब आप वॉक करते हो तो आपकी बॉडी कैसे फील करती है. जैसे कुछ लोग मेडिटेशन करते हैं और कुछ लोगों के लिए बिल्कुल आसान नहीं होता मेडिटेशन करना. आई कैन नॉट सिट, आई कैन नॉट सिट फॉर इतनी देर के लिए कि मैं बैठूं. लेकिन आप वॉक कर सकते हैं. इंस्टेड ऑफ मेडिटेशन, हु आर नॉट एबल टू सिट फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड डू मेडिटेशन, दे कैन डू माइंडफुल वॉकिंग. तो जब वॉक करें, पहले तो बेयरफुट करें. इफ इट इज पॉसिबल, ग्रीन ग्रास पे, या जो मड होती है, हमारा जो सॉइल होता है, उस पे वॉक करें. एंड इंस्टेड ऑफ लॉस्ट इन योर थॉट्स, फील दिस योर, कैसे आपका पैर मिट्टी पे जा रहा है, ग्रास पे जा रहा है, और आप उसकी फ्रेशनेस को, उस चीज को आप फील करिए. अपने आसपास की एयर को फील करिए. फील दैट एयर ऑन योर बॉडी. ऑब्जर्व अराउंड, क्या आप उस गार्डन में हो या बाहर हो, आप कैसे गाड़ियों को देख रहे हो आपके आसपास. इफ यू सी द स्काई, हाउ ब्लू इट इज, कौन से बर्ड्स हैं, उस प्रेजेंट मोमेंट को आप रहिए. सो इस ये चलता फिरता मेडिटेशन है, एंड ये मैजिक की तरह काम करता है अगर आप ट्रेन करोगे. बहुत बार होगा जब आप ट्रैक लूज करोगे, फिर अपनी थिंकिंग में चले जाओगे. बट ब्रिंग बैक योर माइंड. इट्स ओके कि अगर आप लूज करते हो, बट अगेन ब्रिंग बैक योर माइंड टू द प्रेजेंट मोमेंट एंड जस्ट वॉक. अपने जो 5 सेंसेस हैं, आंख, नाक, कान, टेस्ट एंड टच, इनको ओपन रखिए. दिस इज माइंडफुल. जब हम इनको, दिस इज माइंडफुल कि हम अपने जो 5 सेंसेस हैं, इनको प्रेजेंट मोमेंट में रखते हैं. दैट इज माइंडफुलनेस. तो बी, जब हम ऑब्जर्व की बात कर रहे थे, तो यू जस्ट डोंट हैव टू लुक, यू हैव टू ऑब्जर्व. चीजों को ऑब्जर्व करना सोचिए. सुनिए. हम सिर्फ कुछ नहीं सुनते, कभी कभी हम जो हमसे बात कर रहा होता है, उसकी बात भी नहीं सुनते. अभी बहुत बार हुआ होगा कि इस सेमिनार में, वेबिनार में, आपने मेरी आधी ही बात सुनी होगी, क्योंकि बीच बीच में बहुत बार आप डिस्ट्रैक्ट होगे. अभी आगे क्या करना है, आगे का काम, पीछे का क्या क्या किया है, उसमें आप डिस्ट्रैक्ट हो गए होगे. सो बट इट्स ओके. ब्रिंग बैक योर माइंड टू द प्रेजेंट मोमेंट. जब आप बाहर वॉक कर रहे हो तो गाड़ियों की आवाज पे ध्यान दीजिए. क्या क्या और आवाजें आपको आती हैं इस मूवमेंट पे भी. जस्ट थिंक, अपार्ट फ्रॉम माई वॉइस, व्हाट अदर वॉइसेस यू कैन लिसन. सो इससे आपके सेंसेस ओपन हो रहे हैं, है ना. आप अपने सेंसेस को ओपन कर रहे हैं, माइंडफुल यूज कर रहे हैं अपने सेंसेस का. द स्मेल, सिर्फ खाने की स्मेल या अगरबत्ती की स्मेल जो बहुत हम इसी को ले पाते हैं, या अगर कोई फाउल सी स्मेल आती है तो हम उसी टाइम हमारे एक्टिवेट होते हैं ग्लैंड्स. लेकिन अभी भी बहुत कुछ माइन्यूट माइन्यूट सी स्मेल होती है ना.
उसको स्मेल करिए। बारिश के टाइम पे तो हम देखते हैं कि मिट्टी की स्मेल, हमें ये सब कॉमन स्मेल है, लेकिन अभी इस मोमेंट की स्मेल आपने कभी सोची है? इसको एक्टिवेट तो करिए अपने स्मेल सेंसेस को। अदर देन दैट डेफिनेटली आपको कुछ बहुत अलग अलग स्मेल्स आएंगी। एंड द टच, कभी आप जैसे आई कैन फील दिस हैंड, आई कैन हाउ यू प्रेस दिस हैंड, ये टच होता है। सिर्फ पेन जब हमको कोई मारता है या लगती है तभी हमको वो टच फील होता है, या कोई एक समबडी हग, तो वो एक लविंग। लेकिन बहुत माइन्यूट माइन्यूट टचेस होते हैं। हवा का, हम जैसे बैठे हैं, जहां जहां आप बैठे, कैन यू फील एट दिस प्रेजेंट मोमेंट हाउ इट्स फीलिंग? आर यू कंफर्टेबली सिटिंग, या आपको कुछ अनइजीनेस हो रही है? हम कितना इग्नोर करते हैं अपने प्रेजेंट मोमेंट को। तो जस्ट यूज योर फाइव सेंसेस, बी माइंडफुल इन दिस प्रेजेंट मोमेंट। अपने टच को, अपने सेंसेस को यूज करिए, एंड दिस इज जस्ट ओनली एज सिंपल माइंडफुलनेस इज। So again, we have already discussed: touch it, smell it, chew it, and hear it. Challenges होते ही होते हैं, distraction, and it's okay to get distracted, but bring back your mind. It will happen, but अगर आप 1 मिनट के लिए कर सकते हैं, then means that you are capable of doing it 100 more times. Psychological benefit, definitely more concentration. We have discussed the same things. डिक्रीज डिस्ट्रैक्टिंग थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स, आपके इमोशनल रिस्पॉन्सेज बहुत अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि वो कामनेस आप अपने अंदर लेके आएंगे। सो सिंस एवरीथिंग इज रिफ्लेक्टिंग ऑफ आवर माइंड्स, एवरीथिंग कैन बी चेंज्ड बाय आवर माइंड्स। So this is mindfulness. At this point of time, I would like if anybody can ask the question. We'll take 5 to 10 more minutes and have a question. Any questions? Or you can, yes, Mr. Akshay. हाँ जी, yes. स्लीप साइकिल होता है, Sorry, एक स्लीप साइकिल होता है हमारा। same हेलो, cycle. हाँ जी, थोड़ा सा डिस्टरबेंस आ रहा है। हाँ जी, स्लीप साइकिल होता है मैंने अपना। हाँ, sleep cycle. तो जैसे स्लीप साइकिल, एग्जैक्टली। लेट मी डिस्कनेक्ट माय ब्लूटूथ। Okay. ओके, एम आई ऑडिबल? Yes. हाँ जी, अब हमारा एक स्लीप साइकिल होता है जिसमें मैं 6 बजे सो जाता हूँ और मैं ट्राई करता हूँ, मैं सॉरी 10 बजे रात को सो जाता हूँ, है ना। फिर एक थॉट प्रोसेस चलती है जो कि अराउंड 11 बजे तक चलती होगी। फिर उसके बाद मैं एक मैं चले जाता हूँ डीप स्लीप में, जहाँ मुझे कोई थॉट्स नहीं आ रहे होते हैं। बट ठीक है, फिर मेरा एक मेरा जो अलार्म है या उससे पहले मैं जाग जाता हूँ और एक मैं उस अगेन वो थॉट प्रोसेस में आ जाता हूँ। ठीक है। सो सी हाउ इट हैपेंस कि एक तो हमारा एक बाहर के क्लॉक से ज्यादा हमारी खुद की एक बायोलॉजिकल क्लॉक होती है। तो हमारी यस यस सबकॉन्शियस माइंड या हमारी बॉडी ट्रेंड होती है उस टाइम पे उठने यस की। मैम, मैंने इसको ट्रेन कर रखा है अपने सबकॉन्शियस माइंड को कि वो Yes. मुझे एग्जैक्ट 4:30-5 बजे उठा देती है। बट मैम कई बार ये होता है ना कि मैं उससे पहले ही जाग जाता हूँ और मुझे पता है कि ये थॉट चल रहा है। तो अब मेरे को ये आपसे क्वेश्चन है कि मेरी जो स्लीप हुई है या नहीं हुई है। मैं अगर 6 आवर्स की स्लीप लेना चाहता हूँ, बट मुझे लग रहा है कि अभी मैं ये थॉट्स में हूँ, तो मैं उठ जाता हूँ। तो उस बेसिस पे कितने घंटे की, जैसे 4 घंटे की हाँ? कभी नींद होती है, तो फिर वो हाँ, कंप्लीट हुई है नहीं हुई? मेथी, गाजर, नहीं, नींद आलू। नींद तो आपको कम से कम नींद तो आपको कम से कम 8 घंटे की लेनी चाहिए। दूसरी चीज, अब आपको अगर ऐसा लग रहा है कि आपके अलार्म से पहले उठ रहे हो, तो आप अलार्म लगाना ही बंद कर दो, क्योंकि आपका ओके सबकॉन्शियस माइंड को पता है कि अलार्म बजने वाला है, वो अलर्ट मोड में है, अरे बहुत एक पूरी खा लो। एक्टिव है ना, उसको पता है, तो वो उससे पहले ही आपको जगा देगा। एक पूरी खाओ आप। सो आप कितने दिन? ओके मैम। स्टॉप योर अलार्म क्लॉक। और दूसरी चीज, जहां पर आप सोते हो, ठीक है एक ना, पूरी यस खा के देख ले। ट्रेन योर ब्रेन लाइक दिस कि अब इस मुझे 9 से या 10 से 11 सोचना है। आइदर आप या तो थोड़ा ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा कि आप उस मूवमेंट पे सोचना बंद कर दो, या उस जगह को चेंज कर दो, या डायरेक्शन चेंज कर दो अपने सोने का।
तो आपके ब्रेन को या आपके सबकॉन्शियस माइंड को वो एक सिग्नल मिलेगा कि इट कैन बी गेट एट टाइम्स हमें ट्रिक करना पड़ेगा, कंफ्यूज हो जाएगा। अभी तक आपने ट्रेन कर दिया अपने ब्रेन को कि ये मुझे सोचना है, इस जगह पे सोचना है। तो आपको थोड़े ये तो शुरू में सर प्रैक्टिस करनी मेरे को पड़ेगी तो कि इस टाइम पे रूटीन ना आइदर अच्छा नहीं सॉन्ग लगता। सुन लो अच्छा मैं घर का और गृहस्थी घी रहता है, सॉन्ग सुनिए, लेकिन कुछ दूसरी हाँ एक्टिविटी बस करिए, ये रीडिंग कर लीजिए, अच्छा मिर्ची डाली किसी दूसरी एक्टिविटी में उसको इन्वॉल्व कर लिए। तो आपने पिछला चैनलाइजेशन लर्निंग कर रखी है ना सबकॉन्शियस माइंड की, उसको अनलर्न यस करिए यस और किसी नई चीज के साथ ऐड करिए। यू कैन रीड, यू कैन लिसन टू सॉन्ग्स इंस्टेड ऑफ वो 10 से 11 वाला जो आपका थॉट प्रोसेस है ना, उसको हटाने के लिए। ओके ओके ओके, गॉट इट, थैंक यू। ओके, थैंक यू। एनी अदर क्वेश्चन? Any questions? मैं एक चीज और शेयर करना चाहूंगी कि देर आर मेनी माइंडफुलनेस गाइडेड मेडिटेशंस ऑन यूट्यूब ऑल्सो। आप माइंडफुलनेस गाइडेड मेडिटेशन यूट्यूब में जाके सर्च करेंगे, आपको बहुत सारे मिलेंगे जहां पे आपको यू विल गेट कि वो किस तरह से होते हैं। फोकसिंग ऑन योर बॉडी पार्ट्स इंस्टेड ऑफ डिस्ट्रैक्टिंग और फोर्सिंग योर माइंड टू क्वाइट, वो आपको गाइड करेंगे कि एक प्रॉपर किस तरह से चैनलाइज करना है, हाउ टू ब्रिंग अटेंशन टू योर बॉडी पार्ट्स फ्रॉम लेग्स टू फॉर एवरी बॉडी पार्ट्स टू द हेड, फ्रॉम टोस टू टॉप ऑफ योर हेड, focusing on every single body parts from your fingers, your thighs, your stomach, lower back, upper back। वो प्रॉपर 5 to 10 मिनट्स के होते हैं। तो वो आपकी इनिशियल लेवल पे जो माइंड चैटरिंग होती है ना, वो बंद कर देंगे। क्योंकि हम कितना भी कोशिश करते हैं इनिशियल लेवल पे मेडिटेशन के थ्रू अपने माइंड को क्वाइट करने की, वो नहीं आता है क्योंकि हमने उसको ट्रेन नहीं किया होता। जिन लोग बहुत टाइम से प्रैक्टिस कर रहे हैं, इट बिकम्स इजी फॉर देम, बट फॉर द बिगनर्स इट्स क्वाइट डिफिकल्ट। सो go to YouTube, you can search for mindfulness 5 minutes guided meditation. Don't go only for the music, the guided meditation, so that will be very much helpful. Yes. And one more question is that On the group, definitely I will share. And there is Mr. Pradeep ji, all used me avail benefits, after all why they are showing the reverse। आप इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हो अपने क्वेश्चन को, प्रदीप जी? प्रदीप जी, यू कैन अनम्यूट यू एंड आस्क योर क्वेश्चन। प्रदीप जी, आपका क्वेश्चन मुझे थोड़ा सा क्लियर नहीं है। You can unmute yourself, Pradeep ji. मैम Are जब you there? तक मैं पूछूं मेरा क्वेश्चन, हाँ, आप पूछे। मैम ये बाइनरल बीट्स भी इफेक्ट करती हैं क्या? जैसे अगर मैं काम कर रहा हूँ साथ ही साथ बाइनरल बीट्स सुन रहा हूँ या कुछ? यस यस यस, क्या होता है, बाइनरल बीट्स हमारे ब्रेन में वेव्स होती हैं। तो वेव्स हमारी अल्फा बीटा गामा थीटा में रहती हैं। तो जो बीटा वेव्स होती है वो हमारी एक्टिव ब्रेन होती है। जैसा ये जो मूवमेंट है, तो जो आप और मैं काम कर रहे हैं, सुन रहे हैं, एक्टिव स्टेट में है। तो अभी हमारे ब्रेन में जो वेव्स हैं, दे आर बीटा वेव्स। जब हम थोड़े से मेडिटेशन मोड में होते हैं या रिलैक्सेशन मोड में होते हैं, दोज आर अल्फा वेव्स। और जब हम स्लीप में होते हैं तो दैट इज थीटा और गामा वेव्स होती है। मतलब जब ट्रांस में चले जाते हैं वो गामा होती है, नहीं तो स्लीप स्टेट इज थीटा। तो हम डिफरेंट वेव्स को यूज करके कौन जैसे अभी जो बच्चे पढ़ते हैं, फोकस करना होता है, तो हम लोग बीटा वेव्स का यूज करते हैं। जब हम मेडिटेशन में जाते हैं तो दैट इज अल्फा वेव्स, सो यू कैन यूज दैट। ओके, थैंक यू मैम। Pradeep ji, any other question? So at this point of time, I would like to thanks everybody for having your patience and listening to me for an hour, and I hope it was helpful to you and will be beneficial for you. Dr. Mala has said I'll definitely share the links, and if anybody in future they have some questions regarding that, you can share on the group. I'll definitely try to resolve your query. And I would like to thank Isaac and Archana ji for inviting me here, so I can just interact with you people. Thanks for the wonderful questions, and thank you so much. Thank you.